Hello everyone. So here I am back with my another video, and the video is very interesting because the video is on internet. The introduction of internet. The chapter name is the internet and introduction. As we have already discussed this lesson in my previous video, and what things we discuss as you can see on the screen, and that is about internet we discussed, then about advantages of the internet and their disadvantages also we discussed. Along with that we discussed the uses of the internet also. But in the today's session, which will be very interesting, and we are going to talk on search engine. What is this? Then about web browser, then measures that we should take to protect yourself online. Means suppose you're online, so what things which will protect you, as well as you will also not harm others. We'll discuss on that. And then last but not the least, we'll discuss the responsibility of a good digital citizen. Means how will you show your goodness and as well as your etiquettes when you are online. So for the sake of this, we have reached on the first topic, and that is search engine. Children, the search engine is a very unique word, and definitely you will get confused in browser and in a engine. As the name is search engine, means you are going to search something special or something particular. So a search engine is a software that search for any specific information which you required, and the search is made on various, it may be various things. Suppose you are making projects, so you need some search on that. And the very popular search engine is Google. Mostly we are searching everything on the Google screen, and apart of that sometimes we are searching on Yahoo. So these two are the major and very common search engines which we'll get. And do not mix the search engine along with the web browser. So the next topic is web browser. A web browser is very similar to search engine, but there is a difference that the search engine you will not get any icon, but web browser will have in a form of icons. Like, have you seen on your computer or a laptop or on a mobile the Mozilla Firefox or the Chrome, Google Plus, Internet Explorer? These are the softwares which are application softwares and provided you in a form of icons on your home screen or on your desktop. So you will write the simply answer that web browser is a software, application or program that allows us to access the entire information available on web. It is not for specific, it is for all kind of information which you want, that you will be attained by help of this. Now we'll talk on some safety measures. This is the very important to everyone whoever are using the internet, and they are also facing the problems. So safety measure like क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो. तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपका मोबाइल हैंग कर रहा है, क्या आपकी लैपटॉप ख़राब हो रही है, क्या आप इनक्रिप्टेड हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है. सो इन दैट केस वील फॉलो सम सेफ्टी मेजर्स जो कि इस प्रकार हैं जो आपको प्रिकॉशंस लेने हैं. फर्स्ट, यूज़ एंटीवायरस. एनी एंटीवायरस इज़ वेरी, जो भी एंड्रॉयड फ़ोन हम यूज़ करते हैं, जैसे आपके पास सैमसंग्स के फ़ोन होंगे, सोनी का फ़ोन होगा, लेनोवो का फ़ोन होगा, ये सारे के सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं. और इन फ़ोन में आपको एंटीवायरस डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी इनबिल्ट एंटीवायरस इन देम. But when you are not having mobiles, Android mobiles, you are using the laptops or tablets or notebooks, that time you must keep one antivirus in your machine. तो आपको कोई ना कोई एंटीवायरस यूज़ करना है. जो मोस्ट कॉमन और रनिंग एंटीवायरसेस हैं वो है मैकफी, AVG, क्विक हील. कीप बैकअप ऑफ डेटा इन सेकेंडरी डिवाइस. यानी सिर्फ ये सोचकर आप अपने डेटा को लैपटॉप पे या नोटबुक पे नहीं छोड़ सकते हैं कि वो कभी मिसप्लेस नहीं होंगी. कई बार क्या होता है, उससे डेटा ऑटोमेटिक करप्ट हो जाती है, खुलती नहीं है फाइल्स, प्रॉब्लम आती है. सो ऐसे सिचुएशन में हमेशा उनको हमें किसी अदर डिवाइस में सेव कर लेना चाहिए. जैसे कि आप अपनी स्कूल कॉपीज़ का वर्क किसी मास्टर कॉपी में सेव कर लेते हो. और ऐसा करने के लिए आपको यूज़ करना है CD, DVD, पेन ड्राइव्स. इनके help say you can keep the data backup
in the different devices. जो थर्ड चीज़ आपको करनी है वो है स्कैन ऑल अटैचमेंट्स इन एवरी वीक और मंथली एटलीस्ट बिफोर यूज़। मीन्स जो चीज़ आप अटैच करते हैं अपने टैबलेट से या लैपटॉप से या मोबाइल से, कोई यूएसबी अटैच कर रहे हैं, कोई दूसरा मोबाइल अटैच कर रहे हैं, या कोई पेन ड्राइव अटैच कर रहे हैं, या लैपटॉप से उसको अटैच कर रहे हैं, इन दैट केस हमेशा ध्यान रखिए कि उसको पहले स्कैन करना चाहिए, बिकॉज कई बार उनमें वायरस पहले से ही मौजूद होती हैं। अगर आपने उनको डायरेक्टली रन किया तो क्या होंगी, वो वायरस ऑटोमेटिक मोबाइल से लैपटॉप में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो जस्ट कीप इन माइंड दैट ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ ऑन इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट पे हो तो देर आर लॉट्स ऑफ चांसेस कि आपको कोई हार्म कर सकता है या आप भी किसी को हार्म कर सकते हो। तो बी केयरफुल एंड फॉलो दीज स्टेप्स। फर्स्ट इज कीप अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यानी हमेशा अपने पासवर्ड को या तो चेंज करिए या ऐसा पासवर्ड रखिए जो लोग जल्दी इमेजिन ना कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अपने पासवर्ड में कोई अल्फ़ाबेट, नंबर या कोई कैरेक्टर ज़रूर यूज़ करें। व्हेन यू विल यूज़ ऑल थ्री तो आपका पासवर्ड यूनिक बन जाएगा एंड दैट विल बी नॉट एक्सेस्ड बाय अदर्स। बट जनरली व्हाट वी डू, वी कीप वेरी सिंपल पासवर्ड्स लाइक ओन नेम, लाइक birth dates, or like any song name or any favorite character, superstar name. So वो लोग आपके बारे में जानते हैं and they can easily search your ID and information. सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है, डोंट शेयर एनी पर्सनल डिटेल्स। अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल, जैसे आपकी कोई पर्सनल वीडियोज़ हैं या आपके बहुत ही पर्सनल प्राइवेट पिक्चर्स हैं या फिर आपकी किसी तरह की बैंक डिटेल है, आपको कभी भी किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट करके उनको शेयर नहीं करनी चाहिए। होता क्या है, हम इन चीज़ों को नॉर्मली हम अपनी डेली लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, हम किस वक्त कहाँ जाते हैं, किस वक्त कौन हमारे घर आता है, और बच्चे इस तरह की इन्फॉर्मेशन, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, वो ट्रस्ट करके सबको दे देते हैं और बाद में फिर उनके साथ कभी ना कभी कोई क्राइम हो ही जाती है। तो बिवेयर ऑफ डूइंग दिस। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्लीज़ ऑलवेज कीप सेफली। और जो लास्ट चीज़ आपको करनी है, ये तो मैं बड़ों को भी कहूँगी, कीप कॉशंस वाइल ऑनलाइन शॉपिंग एंड गेमिंग साइट्स। अभी हाल में ही मेरी खुद की फैमिली में एक घटना हुई है कि कुछ बच्चों ने पबजी खेलते हुए बैंक की सारी मनी उस पबजी में लगा दी, क्योंकि उन्हें ये आइडिया ही नहीं था कि जो कार्ड उन्होंने अटैच किया है उससे पबजी जो है वो बहुत सारा पैसा निकाल रही है। तो जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो या कोई गेमिंग साइट जिसमें कि मनी डिमांड होती है या कार्ड पेमेंट मांगते हैं, रिमेंबर ऐसी गेम्स को अवॉइड करें। एंड इन दैट केस यू मस्ट टेक परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स और फ्रॉम एल्डर्स एंड डोंट blindly do the shoppings also, because they are always taking the informations from you, sometimes the card details and your address details, so avoid this. और जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन। क्या क्या चीज़ें आपको एक अच्छे डिजिटल सिटीजन के लिए शो करनी चाहिए। यानी हम रियल लाइफ में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हमारी जो वर्चुअल लाइफ है वहाँ हमारा बिल्कुल दूसरा ही रूप होता है। मीन्स समटाइम्स वी आर हार्मिंग अदर्स, समटाइम्स वी आर अब्यूजिंग, समटाइम्स वी आर गिविंग रॉन्ग रिमार्क्स टू अदर्स, कमेंट ऑन देयर पिक्चर्स एंड देयर वीडियोज। तो ये एटिकेट नहीं है, मैनर्स नहीं है। तो फर्स्ट चीज़ जो आपको करनी है, ऑब्जर्व एटिकेट्स व्हेन यू आर ऑनलाइन। जब आप ऑनलाइन है तो भी अपनी लैंग्वेज का, अपनी हैबिट्स का ख्याल रखें। डू नॉट ब्लॉक एनीबडी अननेसेसरी, डू नॉट मेक देयर एंगर अप, डू नॉट से एनीथिंग विच दे माइंड एंड डोंट डू दीज थिंग्स। रिपोर्ट अनलॉफुल एक्टिविटी ऑफ एनीवन। अगर कोई आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, याद कीजिए, आपको याद रखिए, यू हैव ऑल्सो ऑप्शन to report about their email or their informations or their messages, anything जो भी आपको अगेंस्ट लगती है आपके, आप उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी आप गूगल पे पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इफ़ यू आर माइंडिंग समथिंग, few days ago one girl also phoned me and told that somebody threatening her
via different phone numbers. The best way is that phone number of yours you should give to the police, that will be tracked that who else are calling on your number. तो आपके नंबर्स पे जो भी फ़ोन आएंगे वो ट्रैक हो जाएंगे और इस तरह से आराम से उसे पकड़ा जा सकता है. डोंट टैम्पर समवंस फाइल और फोल्डर, यानी किसी और की बनी कोई भी फाइल या फोल्डर को कभी भी डिस्टर्ब ना करें. फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, उन फाइल्स को निकाल के उनमें एडिट कर देते हैं, उनमें चेंजेस कर देते हैं, उनकी डेटास को सेव डिलीट कर देते हैं, उनकी डेटास को मिसयूज़ करते हैं. तो इसको अवॉइड करें. आपको किसी और की इन्फॉर्मेशन को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ना ही उन्हें अपनी इन्फॉर्मेशन को डिस्टर्ब करने देना चाहिए. नेवर क्रिएट फेक आइडेंटिटी, अपनी कभी भी फेक आइडेंटिटी मत बनाइए, मीन्स अपनी डुप्लीकेट आइडेंटिटी मत बनाइए. समटाइम्स वी हैव 2-3 अकाउंट्स एंड वॉट वी डू, इन ओनली वन वी आर ओरिजिनल एंड द अदर IDs आर बाय अदर नेम्स. And what they are doing, they are playing games with others, they are misusing their another account and the children are doing mostly. इसीलिए बहुत ज़्यादा यूथ क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. रीज़न इन फेक आइडेंटिटीज़ को, इन फेक IDs को कोई भी फाइंड आउट नहीं कर पाता है. तो इफ़ यू आर अ गुड सिटीज़न यू विल डेफिनेटली नॉट फॉलो दीज थिंग्स. और लास्ट में जो चीज़ है वो है डोंट कॉपी पेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट. अगर आपको कभी भी कोई टास्क मिलती है, सपोज़ आपको कोई पोएट्री लिखनी है या आपको कोई डॉक्यूमेंट लिखना है या आपको कोई ऐसे लिखना है, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम इंटरनेट. बट रिमेंबर, एवरीथिंग इफ यू आर कॉपिंग एंड पेस्टिंग, दैट मीन्स यू डोंट हैव योर ओन ideas and all, and you are only simply copying, pasting and duplicating that informations. तो ये था हमारा आज का इंटरेस्टिंग सा प्यारा सा वीडियो. होप यू ऑल हैव नोटेड एवरीथिंग अलॉन्ग विथ मी, ताकि आपको भी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम ना आए. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.